قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ معزز سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارکہ موت تو لے کے قبر تک دے احکام و مسائل دے اوپر گفتگو جاری اور ساری سی۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر جنازے دے احکام و مسائل تے بات تواڈی اور میری ختم ہوئی سی۔ گزشتہ اور پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر غسل میت دے حوالے دے نال جو طریقہ اور نال کفن اور مرد اور عورت دا غسل، اس دے احکام و مسائل جڑے بیان کیتے سی، انہاں دے اندر ایک چیز جو بیان کرنا ضروری سمجھنا اس غسل دا حصہ سی کہ جس وقت میت نو غسل دینا ہے کہ اس دے زائد بال، ہتھاں دے ناخن، آیا کہ غسل دا حصہ ہے وے میت دا یا نہیں، اس نو اتاریا جائے یا نہ اتاریا جائے۔ بعض جگہ دے اوپر میت نو جس وقت غسل دیتا جاندہ ہے اس دے زائد بال جڑے نے بما بغلاں دے بال، اس نو اتارن دی کوشش کیتی جاندی اور ناخن بھی اتارے جاندے نے۔ اصول اے وے کہ جس وقت بندہ زندہ ہے، بیماری دی حالت اندر ہے، اس دے ورثاء دا حق ہے اسی وقت اے کام کرن، اور اگر نہ کر سکن، بال زیادہ بڑھ جان، اگرچہ 40 دن تو اوپر بھی ہو جان، ناخن بڑے ہون، نہ کر سکن، بندہ فوت ہو گیا ہے، میت جڑی ہے مرد دیے یا عورت دیے، اس دے زائد بال ناخن اتارن دی کوئی بھی زحمت کرن دی ضرورت نہیں، چونکہ دین اسلام تے ہے زندہ واسطے، وہ تو مکلف رہ ہی نہیں گیا۔ تو اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جس وقت بندہ زائد بال اتارن دی کوشش کرتا ہے اس دا پردہ بھی جڑا ہے نا وہ ختم ہوتا ہے، اور غسل میت دے اندر پردہ بھی لازم ہے۔ تو اس واسطے میت نو غسل دین لگیا، اے ناخن، سر دے بال، اور اگر مونچھاں زیادہ بڑھ گئیاں نے، زائد بال زیادہ بڑھ گئے نے، انہوں اتارن دی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسری چیز، بعض جگہ دے اوپر پتہ نہیں جہالت دی وجہ تو ہے یا مسئلہ علم اندر نہیں، جس جگہ دے اوپر میت نو غسل دیتا جاندہ ہے نا، غسل دین تو بعد کفن دے کے جنازہ ہو گیا، میت دفن کر دیتی ہے، 3 دن یا 7 دن تک عورت جیڑی ہے نا گھر دے اندر عورتاں نے یا مرد نے اس جگہ تے مٹی پا کے تے کچھ اگربتیاں تے یا پھر موم بتیاں جڑیاں نے نا اس جگہ تے لائیاں جاندیاں نے، شاید کہ اس وجہ تو کہ روح جڑی ہے واپس آندی ہے، جبکہ یہ بھی دین اسلام شریعت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ وہ جگہ ایک عام جگہ ہے، جس طرح بندہ خود غسل جنابت کردا ہے، اس دا پانی جڑا ہے ضائع ہو جاندہ ہے، اوتھے بعد اندر دوبارہ غسل کر لیندا ہے، کوئی بھی کام کر لیندا ہے، یعنی کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس جگہ تے میت نو غسل دیتا ہے، کوئی جگہ خاص بن گئی ہے، کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں، عام جگہ طرح وہ جگہ ہوئے گی۔ اور تیسری بات سی جنازے دے حوالے دے نال جڑی جاری سی کہ جنازہ 3 وقتاں دے اندر پڑھنا پڑھانا یہ جائز نہیں۔ 3 وقت، کنے وقت؟ 3 وقت۔
ਉਹ 3 ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ 8-7 ਹੱਦ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम सहीह मुस्लिम और अबू दाऊद ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਨ ਗਰੂਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਹੱਦ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੂਰਜ ਢਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने रोकिया, मना किया। आगे चलिए, 4 तकबीरां जनाजे के अंदर है और हर तकबीर के नाल रफुल यदैन करना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हदीस मौजूद है। और जनाजे के कुछ मसाइल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। 4 ਤਕਬੀਰਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਤਕਬੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਹ ਫਾਤਿਹਾ, ਸਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर कोई सूरत कुरान पाक दी मिला लो, कोई एक आयत मिला लो कुरान पाक दी, फिर दूसरी तकबीर कह के कन्ना दी लौ तक हाथ उठा के सीने ते बन के फिर आगे दरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला जड़ा पढ़ी दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मद। इस तो बाद तीसरी तकबीर होएगी अल्लाहु अकबर कह के हाथ सीने ते, फिर फ़अख़लिसू लहु दुआ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਈयत ਪਈ ਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਆ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਖੁਤਬਾ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़ाकर। ये दुआए आम जिंदियां वास्ते भी मुर्दियां वास्ते भी, यानी कि फ़अख़लिसू लहु दुआ। इस हदीस का माना मतलब ये वे, उदों इस हदीस के माने ते पूरा उतरांगे जदों इस तो आगे दुआ जिहड़ी अहम तरीन दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू व आफ़िही व आफ़ु अन्हु। और लाजम है, ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, ते सानू तुहानू ए 2 दुआवां ते लाज़मन याद करनियां चाहिदियां ने। 2 दुआवां अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू। ए अगर असां 25 30 40 50 70 80 साल की उम्र अंदर पहुँच के भी नमाजे जनाजा जिहड़ा आखिरी हक है ना मैयत दा, ए दुआवां भी याद नहीं ना कीतियां, कुछ नहीं खटिया असां इस दुनिया ते। रियाल डॉलर चौधरा चमका के फैक्ट्रियां महलात बना लेने, लेकिन ए 2 दुआवां 17 साल अंदर भी याद ना कर सकिया, फिर तेरी जिंदगी ते अफसोस ये हदायत की दुआ ही कर सकते हैं। ए 2 दुआवां लाजमन याद करो। और इत्थे एक अहम तरीन मसला, अगर मैयत जड़ी है ना वो मरद दी है तो ज़मीर होंदी है हू, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू। अगर मैयत जड़ी है औरत दी है फिर ज़मीर आंदी है हा। अगर ज़मीर ना भी बदलोगे ना फिर भी कोई मसला नहीं, अगर नहीं बदली जाती कोई हरज नहीं, कोई मसला नहीं। ज़मीर तुसी पढ़ लो, हू पढ़ लो या हाँ पढ़ लो, अगर बदल ली जाए ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी किस्म का कोई मसला बनता है तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू व आफ़ी, जिमें रट्टा लाया है, जिमें याद की है, उवें ही तुसी पढ़ लो दुआ। फिर आगे जिस वक्त मैयत वास्ते इमाम साहब ने दुआवां शुरू करनियां ने, इस दे पीछे असां की करना है, हुण इस मसले ते गौर करना। बास जिहड़े ने उलमा इकराम ने कि अगर दुआवां याद नहीं ना तो तुसी नाल नाल आमीन कहते रहना। ए आमीन का मसला सहाबा इकराम दे अंदर ते नहीं, पूरा ज़ख़ीरा हदीस पढ़ जाओ कि जनाज़े अंदर आमीन पीछे पीछे कहना, ये तुहानू कोई रवायत नहीं मिलेगी। अलबत्ता एक रवायत जी सहीह मुस्लिम अंदर है, तकरीबन 1 महीना रसूल पाक ने कनूते नाजला कराई जो 70 कारी शहीद हो गए, उहदे अंदर आमीन साबत है कि नबी पाक ने नमाज के अंदर जड़ा ना आखिरी रकत अंदर कनूते नाजला कराई, सहाबा इकराम पीछे कनूते नाजला पढ़ते रहे तो आमीन कहते रहे, रसूल पाक दुआवां करवाते रहे।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਆਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਗਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਦੁਆਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਆਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਮੀਨ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਮੀਨ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਹਿਸਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਾएं ਬਾएं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਲੇਕਿਨ ਉੱਚੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝਿਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 80% ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 80%, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ 95-90 ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ 80% ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਤਵਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਅਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖੈਰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਵੇ ਲਾਨੇ ਆ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਗੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੋ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਉਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਕਫਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਬਚਿਆ ਅਸਾਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਕ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅਮਾਲ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਫਾਖਲਿਸੂ ਲਹੁ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਈਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਈਏ ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਹਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਆਹਿਸਤਾ? ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈ ਦੋਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਵਾयात ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਹਰੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਵਾयात ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾयात ਹੈ, ਜਾਹਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਹਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दे कोलों साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दे सहाबी सही हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, नबी पाक ने एक अंसारी दा जनाजा पढ़ाया है, मैं पीछे खलो के रसूल पाक दे जनाजा पढ़े है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वआफ़ु अन्हु व अकरिम नुज़ुलहू। आपने इतने खलूस ना दुआवां पढ़ियां ने, इतनियां बाकमाल दुआवां पढ़ियां ने कि मैं रसूल पाक दियां दुआवां सुन सुन के याद कर लईयां ने, सुन सुन के याद कर लईयां ने। इहदा की मतलब होया? हदीस चों की मसला निकलिया कि सहाबी रसूल ने रसूल पाक दे पीछे जनाजा पढ़िया, सुन के दुआवां अगर ऐसा पढ़ियां होंदियां ते सुनिया ना जांदा। यानी कि जाहरी आपने जनाजा पढ़ाया है ना। जिस वक्त असां किसी मैयत का जनाजा पढ़ाने वास्ते खड़े होने, अगर असी जाहरी नमाजे जनाजा पढ़ाइए तो सिर्री का इनकार नहीं करते,
ਅਗਰ ਸਿਰਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰੌਲਾ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਖਤਲਾਫ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਰੀ ਆਹਿਸਤਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਸਿਰਰੀ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਰੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਨਨਾ ਹਦੀਸ से ईमान ताज़ा हो जाए, हत्ता तमन्नईतु अन अकूना अना ज़ालिकल मय्यित। साहबी रसूल फरमाते ने आपने इतनियां खलूस ना दुआवां कीतियां, मेरे दिल अंदर तमन्ना पैदा हुई, ऐसी तमन्ना पैदा हुई, काश कि इस मैयत की जगह ते मेरी मैयत होए। ये जनाजा रसूले पाक पढ़ा रहे होन ते इस जगह ते मैयत मेरी होए। यानी कि इतनियां बाकमाल रो रो के इतनी दर्द वाली आवाज़ अंदर रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआवां कीतियां। तो अपनी मैयत का जिहड़ा हक है ना, ये ना खोवो। जनाजा पढ़ाओ, जनाजा पढ़ा के सलाम फेरे है। इस तो बाद जड़े ने बाज़ लोग साढ़े साथी खड़े हो के दुआ कसरत ना शुरू कर देंदे ने। जनाजा पढ़ाउण दे उपर सिर्फ 50 सेकंड, पूरा मिनट नहीं, पूरा मिनट नहीं, मैं खुद नोट किया है टाइम, मेरा ख्याल 49 के 50 सेकंडा अंदर मौलवी ने सलाम फेर दिया। ना पूरी फातिहा सही तरह पढ़ सके, ना दरूद पाक पढ़ सके, ना कोई दुआ पढ़ सके। फेर के पूरे 5 मिनट बाद अंदर खड़े होके हथ चुक के दुआ ते लाते। जिहड़ा असल काम सीगा उत्थे दुआ कीती नहीं, ते जिथे दुआ करनी नहीं सी उत्थे दुआ कर छड़ी। नहीं, दुआ जड़ी है फिर मैयत नूं दफन करना है। आइए ज़रा सुनिए, मैयत नूं हुण जिहड़ा जनाजा चुक के दफन करना है और दफन करन दा तरीक़ाकार की है, फिर इस तो बाद अगला मरहला इसाले सवाब वाला वो की है। आइए ज़रा उन तवज्जो कीजिए। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया, पूरी कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक, रौनक, बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी ज़रा फरमा दीजिए, सुनिए ज़रा अल्लाह पाक दा कुरान। फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ कायनात दे लोगो, तुहाडे मेरे वास्ते जिंदगी अंदर खुशी आ जाए तरीका मेरे पैगंबर दा, गमी आ जाए तरीका मेरे पैगंबर दा, दुख आ जाए तरीका मेरे पैगंबर दा, सुख आ जाए तरीका मेरे पैगंबर दा। अपनी गमी और खुशी अंदर सोने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो दाखिल कीजिए। मेरे पैगंबर दी सुन्नत दे मुताबिक अपने मैयत दे अहकामो मसाइल, क्योंकि जिहड़ा भी इस कायनात अंदर इस दुनिया ते आया है कोई हमेशा रहन वास्ते नहीं आया। अपने हफ्तां दे नाल असां किन्ने जनाजे उठाए ने, असां अपने हफ्तां दे नाल किन्नियां लोगां ते मट्टियां पा छड़ियां ने। अज अगर असां अपनी मैयत दे नाल अच्छा सलूक करांगे, अपने बच्चियां नूं दीन पढ़ावांगे, मैयत दे अहकामो मसाइल सिखावांगे, कल नूं साडे मरण तो बाद साडी आखरत बेहतर होएगी। साडे कफन ते दफन ते जनाजे ते इसाले सवाब दे मामलात जड़े ने ऐन सुन्नत दे मुताबिक, शरी तरीके दे मुताबिक होणगे। क्योंकि जिहड़ा बंदा इस दुनिया ते आया है कोई हमेशा रहन वास्ते नहीं आया। ये दुनिया ते मुसाफर खाना है, सारे दे सारे इस दुनिया ते मुसाफर आ। तुसां इत्थे बैठे हो, मुसाफरां वाली जिंदगी असां गुजार रहे हैं। एक मुसाफर हुंदा है एक तो दूसरे शहर अंदर चला जाए, लेकिन तुसां ते मैं आखरत दे सफर वास्ते इस दुनिया दे ऊपर आए हाँ। अपना ज़ादे रात अपने कबर ते हशर दी तैयारी करने वास्ते आए हाँ। मुसाफर खाना है दुनिया, मुसाफरा तरह रह। मुसाफर खाना है दुनिया, जरा अल्लाह को डर के रह। मुसाफर खाना है ए दुनिया, जरा डर के रह। मुसाफर खाना है ए दुनिया, जरा एहतियात दे ना रह। अपने अमाल नू बर्बाद ना कर, अपनी जिंदगी नू बर्बाद ना कर, किसी दे हक ते कोई कब्जा ना कर। अपना कबर ते अपना हशर ते अपनी कबर नू बर्बाद ना कर। ये दुनिया मुसाफर खाना है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है। दुनिया
کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسے بھی پیارے دی میت نو جنازے تو بعد اٹھایا کر دے، قبر نبی پاک زیادہ پسند کر دے، لاحد والی کڈی جائے، اگر شک والی کڈی جائے جائز ہے، کوئی حرج نہیں، اگر جگہ مناسب مل جائے، پکی جگہ مل جائے تے لاحد والی قبر میرے پیغمبر نے زیادہ پسند کیتی ہے۔ ہن میت نو جڑا ہے قبر اندر اتارنا ہے، میت نو اتار لگیاں جڑے او دے عزیز و اقارب نے، قریبی نے، اہل و عیال نے، او دی اولاد اندروں میں او میت نو لاحد اندر اتارن۔ جس وقت میت نو لاحد اندر اتارنا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اپنی زبان تے ذکر تے دعا نو جاری کر لے۔ وہ 3 بندے نے، وہ 4 بندے نے میت نو لاحد اندر اتار رہے نے، نال نال اپنی زبان ہلا کے پڑھ رہے نے، بسم اللہ و باللہ و علی رسول ملت رسول اللہ، اے اللہ تیرے نام دے نال شروع کر رہے ہیں، اسا نبی پاک دے سنت دے دین دے طریقے دے مطابق اس میت نو اس لاحد اندر اتار رہے ہیں۔ میت نو لاحد اندر اتار لے آئے، لاحد نو بند کر دیتا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی ایدی برادری والے یار دوست نے، قرب و جوار تو آئے نے، وہ جنازہ پڑھن تو بعد جڑے قبر تے کھڑے نے، زیادہ نہیں تے ہر بندہ 3 بک پڑھ کے مٹی دے ضرور پائے، 3 بک پڑھ کے مٹی میت دی قبر دے اوپر پانا، اے میرے پیغمبر دا انداز دے طریقہ دے سنت ہے۔ ان میت نو دفن کر لے آئے، ایدی قبر نو مٹی دے نال بھر دیتا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بلشت جویں اونٹ دی کوہان ہوندی ہے، اتنی اونچی قبر کر دیتی جائے، بہت زیادہ اونچی قبر کرنا دین اسلام دا حصہ نہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو حکم دیتا گیا نا کہ جتنیاں بھی رسول پاک نے فرمایا پکیاں قبراں نے انہاں نوں ٹھا دیو، ختم کر دیو۔ قبر نو پکا کرنا حرام ہے، تختی کسے قسم دی لکھ کے لانا جائز نہیں۔ ہاں کوئی نشانی دے طور تے اگر کوئی چیز لگانا چاہے بطور نشانیاں لاؤن دی بھلا کدوں ضرورت پیندی ہے؟ تختیاں لاؤن دی جدوں ساڈا ابا مر گیا اسی پوچھن جانا ہی کوئی نہیں، جدوں قبرستان وڑنا ہی کوئی نہیں، 5 سال ہو گئے نے، باپ دی قبر کتھے ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں دادے پردادے دی گل نہیں کر رہا، باپ تک اولاد بھول جاندی ہے، ختم معاملات ختم۔ پیاریو نشانیاں لاؤن دی ادو ضرورت پیندی ہے جدوں جانا ہی سالاں دے سال کتے جانا عید دے اوپر۔ اے بھی انداز پتہ نہیں کتوں کڈیا، جانا ہے تے عید نو جانا ہے تے نہیں تے پھر 9-10 محرم نو جانا ہے۔ 9-10 محرم نو مردے یاد آندے نے، 9-10 محرم نو قبرستان یاد آندا ہے۔ پھر قبرستان اللہ دی پناہ قبرستان، یقین جاؤ بڑیاں سرخیاں لا کے پرس لے کے قبرستان جا رہی ہیں۔
ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਬਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਫਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। मेरे प्यारे भाइयों, हफ्ते अंदर एक मरतबा जा, 2 मरतबा जा, ज़्यादा नहीं तो महीने अंदर एक मरतबा टाइम कट के अपनी माँ की कबर ते, अपने बाप की कबर ते, अपनी दादी ते दादे की कबर ते, अपनी भैन की कबर ते, अपने भरा की कबर ते, अगर बीवी फौत हो गई है बीवी की कबर के ऊपर ज़्यादा नहीं तो महीने के अंदर 1-2 मरतबा ते लाजमी जा। फिर निशानियां लाने की ज़रूरत, फिर कबर के ऊपर किसी किस्म के कोई फुल मखाने सुटन की जरूरत कोई नहीं। कोई मैयत नूं फायदा नहीं होएगा किसी किस्म का फुल बूटा उहदे उत्ते सुटन की कोई जरूरत नहीं। नहीं जड़े अमाल कर गया ये लै गया, हुण इहदी मैयत नूं दफन कर दिता गया। रसूले पाक ने फरमाया हुण रज रज के दुआ की जाए। नबी पाक हुण मैयत नूं दफन करन तो बाद दुआ करवाया करते सन। प्यारिओ दुआ साबत कोई इनकार नहीं करता, लेकिन मैयत नूं जनाजा पढ़ाउण तो बाद, मैयत नूं दफन करन तो बाद हुण दुआ की जा रही है मैयत वास्ते। लवाहिकीन दुआ कर रहे ने, दोस्त अहबाब ते अजीज़ो अकारब दुआ कर रहे ने। हुण दुआ करन तो बाद कुछ लोग जड़े ने वापस जा लगे ने। मौलवी साहब फरमाते ने इहदे वरासा नूं बुला के, उराई ना कान अंदर कहंदे ने हजे मैयत दा काम मुकम्मल नहीं होया। अच्छा जी लामा साहब दसो हुण की करना है? आह जी हुण तुसीं इंज करो, थोड़ा जिहा साइड ते होवो। ऐ ना मैयत जिहड़ा सार हुंदा है ना उहदी तरफ खड़ा होके हज़रत साहब कन्ना च उंगलियां दे लेंदे ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा। दुआवां जिहड़ा ना अजान शुरू कर देंदे ने। मैं कहा हज़रत अजान वाला अंदाज किहड़ी शरीयत चों कढिया जे? कह लगा तुहानूं नहीं पता? मैं कहा मैनूं ते नहीं पता, जिहड़ी हदीस लई फिर ना लिया। कह लगा जी वो सही मुस्लिम बुखारी अबू दाऊद तिरमिज़ी सियाह सित्ता दे विच इन्नियां हदीसां ने। मैं किहड़ियां? आह जी रसूले पाक ने फरमाया नहीं कि जदों अजान कही जाए शैतान भज जांदा है। मैं क्या हैगी ये हदीस, लेकिन मैं क्या उत्थे लफज है जिस वक़्त अजान कही जाए मुअज्जिन कहे बिस्सलात, नमाज के लिए जाओ। बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद सुनन इब्ने माजा तिरमिज़ी तमाम तर हदीसां दी किताब के अंदरों तमाम शैतान नूं बेगान वाली जड़ी रिवायत है अजान दे वक़्त अजान देन दे नाल शैतान दूर भजदा है, इनू तकलीफ हुंदी है। ये जितनी रिवायात ने उन्हां अंदर लफज है बिस्सलात, यानी कि जेड़ी अजान मुअज्जिन नमाज वास्ते कहे उदों शैतान भजदा है। मैं क्या इत्थे अजान देन दा की तोके? कह लगा फिर भी फायदा तो है ने ना, फायदा तो है वे अजान कहना शैतान। मैं क्या अच्छा ये मैनू अज पता लगा है कि तुहाडे मुर्दियां दे नाल भी दफन शैतान हुंदे ने। शैतान जिस वक्त बंदा फौत हो जाता है, शैतान दा काम खत्म हो गया है। शैतान बस राह अपना बदल गया है, वो कोई होर रस्ता लभदा है। मैं क्या शैतान भजाउण वास्ते भी चलो तेरी गल मैं कुछ देर लई तस्लीम कर लेना। कबर ते अजान कह रहे हैं, मैं शैतान भजदा है? कहंदा हाँ। मैं क्या शैतान कबर अंदर है वे? तुहाडियां मैं मैयतां ते मुर्दियां दे नाल शैतान भी दफन हुंदे ने। मैं क्या उत्थों तक गुमराह करदे ने। अल्लाह दे बंदो, अजान जिस वक़्त नमाज वास्ते कही जाए, कह लगे जी एक होर रवायत हैगी। मैं वो केड़ी है? वो है जी जिथे अग लगी होए ना, अग लग जे उत्थे अजान कहो तो अग बुझ जाती है। मैं क्या मैं तो हुण तक ये वेंदा सुनदा है जिथे अग लग जाए तो वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ फोन करते हैं 1122 वाले, वो आके अग बुझाते हैं। तो मैं क्या अजान कहने नाल अग बुझदी है? ये रिवायत जाओ, मैं क्या क़यामत दियां दीवारां तक टाइम है, ये रिवायत लैके आओ कि अगर अग लग जाए अचानक तो अजान कहो अग बुझ जाती है। मैं क्या किसी ज़ख़ीरा हदीस अंदर कोई एक सही छड़ ज़ईफ रिवायत भी मौजूद नहीं कि अग लग जाए तो उत्थे अजान कही जाए। मैं फिर भी गल समझ आउंदी है। अच्छा मैं ये भी अज पता लग गया कि तुसीं जदों मैयत नूं दफन करदे हो तुहाडीआं कबरां अंदर अग तां ही तो फिर जड़ा ना आंदा अग बुझाउण वास्ते। खुदा दिओ बंदे हो, अगर अकीदा ठीक है ना माशाअल्लाह 5 वक़्त दा नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, तो किसी का हक नहीं ना खाता, तो कबर अंदर अग कुछ करेगी, शैतान कुछ करेगा नहीं। इंशाअल्लाह उहदे वास्ते रास्ते आसान ही आसान है।
अल्लाहु अकबर मैयत नूं दफन करन तो बाद अजान कही जाए। प्यारे हो मेरे पैगंबर दा अंदाज दे तरीका कोई नहीं। हजरत जी ज़ख़ीरा हदीस अंदर कोई एक रवायत ऐसी मौजूद नहीं है। मेरे पैगंबर दी ज़ौजा सैयदा खदीजा मेरे पैगंबर दियां अखां दे सामने दुनिया छड़ करके चलियां गईयां। मेरे पैगंबर ने दफन कीता लेकिन अपनी बीवी दी कबर ते खड़े होके अजान नहीं कही ना बिलाल नूं हुक्म दिता है जाइए जाइए, अगर कोई रिवायत है वे तो लेके आइए। नबी पाक दे 2 या 3 बेटे दुनिया तो गए ने, आपने आप दे हत्थां दे अंदर वफात पाई है। रसूल पाक ने दफन कीते ने, दफन करन तो बाद मेरे पैगंबर ने खुद अजान कही होए जाओ ज़ख़ीरा हदीस चो कोई एक रिवायत लेके आइए। या नबी पाक ने हजरत बिलाल नूं हुक्म दिता होए ए बिलाल मेरे बेटे दी मैयत मेरे बेटे दी कबर है खड़े होके अजान कह लै। फरमाया कि कोई ऐसी रिवायत मौजूद कोई नहीं। मेरे पैगंबर दियां 3 बेटियां पैगंबर दी जिंदगी अंदर वफात पा गईयां लेकिन मेरे पैगंबर ने खड़े होके अजान नहीं कही। अजान कहन दे नाल शैतान भज जाए, अजान कहन दे नाल कबर दे अजाब अंदर कमी आ जाए। प्यारेओ दीन इस्लाम शरीयत दा हिस्सा नहीं, ये अजान कहना तू खुद बनाया अपने कोलो, वरना किसे सहाबी दे कोलो ऐसा असर ऐसी रिवायत कोई ऐसी नहीं मिलती। ज़ख़ीरा हदीस अंदरों कि सहाबा इकराम ने अपने मुर्दे ते मैयतां नूं दफन करन तो बाद कबर ते खड़े होके अजान कही होए। अजान कह लई ते फिर कुरान पाक खोल लेगा जी हाफज है तो वैसे सूरत बकरा दियां आखिरी आयात रिवायत है, वैसे हदीस है वे लेकिन संदन ज़ईफ़ रिवायत ठीक नहीं, ज़ईफ़ है। रसूल पाक सल्लम ने तो वैसे फरमाया ना, एक आम हदीस है जी सही सनद मजबूत है। आपने फरमाया अपने घरां नूं कब्रस्तान ना बनाओ, की मतलब घर कुरान पढ़िया करो, जिथे कुरान ना पढ़िया जाए वो की है कब्रस्तान है। यानी कब्रस्तान अंदर कुरान पढ़न तो मना किया गया है। खड़े होके सूरह बकरा दियां आखिरी आयतां लो जी, ये भी शरीयत अंदर इस्लाम अंदर दीन अंदर नहीं। फिर जी अपने नाल बुरा साह नूं मैयत दे लैके तुर पैंदे ने ते फिर गिनी जाते हैं 1 2 3 4 5 69 ते फिर 70 कदम हो जाते हैं। फिर खड़े होके दुआ कर लो, फिर 70 कदम खड़े हो गए ने, खड़े होके दुआ कर लो। प्यारे ये अंदाज तरीका नहीं दीन इस्लाम शरीयत दा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दीन इस्लाम शरीयत की सिखांदी है। जनाजा ए रज के दुआवां करो, जनाजे तो बाद दफन करके रज के दुआ करो, वापस आ जाओ। हुण आगे मरहला आंदा है, वापस आके ऐलान किया जाता है हजरात पूरी कौम ते बरादरी वाले तीसरे दिन बोलो जिमें एडे शरीफ हो कभी कीते ही नहीं है। तीसरे दिन वैसे एक गल है वे जे तुसी कीते नहीं ना तो छड्डे भी किसे दे नहीं होने, जे असी करते नहीं ना तो असीं छड्डते भी नहीं गए। असीं कहने चल कोई नहीं खा लईए, खवाउणा नहीं। प्यारे हो जेड़ी खान वाली गल है वह भी गलत है, खवान वाली गल वो भी गलत है। आइए तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, होशियार होके बेदार होके। हुण तक उम्मत जिहड़ी है इस मसले ते लड़दी आ रही है। मैयत नूं दफन करन तो बाद कुल 7 कच्चा चलीसवां, कच्चा भी हुंदा 20 दिनां बाद कच्चा, 40 दिनां बाद पक्का। कच्चा चलीसवां, पक्का चलीसवां, फिर छोटी ईद, वड्डी ईद, फिर सालाना बरसी। यह सारा कुछ किया जा रहा है। हर मसलक दा एक दूसरे नूं कोई किस तरह पुकार रहा है, कोई किस तरह पुकार रहा है। आइए इस मिंबर तो इंशाअल्लाह और रहमान तुहानू 2 टोक हक और सच मसला मिलेगा। कर मेरा किसी नाल कोई इख्तिलाफ नहीं, कुल दिल करदा ही कर, 7 कर, 40वां कर, 11वीं कर, 12वीं कर, लेकिन एवें चंद मिनटां वास्ते थोड़ी जी तवज्जो कर। अगर मेरी गुफ्तगू सुनन तो बाद बयान करन तो बाद तेरा दिल करदा ही जाके रज कर, जिंदियां दे करा, मुर्दियां दे करा, मेरा तेरे नाल कोई झगड़ा नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन हकायक दी दुनिया अंदर आ, दलाइल दी दुनिया अंदर आ। हुण तक लड़ते आ रहे हैं। जो कोई अहले हदीस है उन्हें कहता हराम हराम, उन्हें कहता तुसी सारे गुस्ताख, सारे काफर, सारे जन्मी। उन्हें उन्होंने जन्नत च सुट्टा, उन्हें उन्होंने जन्नत च सुट्टा। जन्नत च किने जाना बई?
उन्हें एक दूसरे को जहन्नम च सुट दिता। जन्नत किने जाना है? जन्नत किना वास्ते वे? जन्नत क्यों कौन जाएगा? आइए लड़ो ना, फतवे ना लाओ। बड़ी मोहब्बत वाला पैगाम, सादा जिहा सवाल है। सब तो पहला सवाल है हज़रात, मैयत नूं दफन करन तो बाद इसाले सवाब वास्ते जिहड़ा तुसीं इह काम करदे हो, कुल साता चलीसवां, कच्चा चलीसवां, पक्का चलीसवां ते फिर बरसी, सालाना, छोटी ईद, वड्डी ईद, ये क्यों करते हो? इसकी वजह की है? जवाब मिलता है ये हज़रत जी इसाले सवाब वास्ते करीदा है। इसाले सवाब वास्ते, यानी इसाल दा माना है पहुँचाना, सवाब दा माना है नेक काम, कोई नेकी मैयत नूं ताकि अजर होए। मैं क्या सारा काम करते हो ताकि मैयत नूं अजर होए, सवाब होए, नेकी मिले, उहदी कबर ठंडी होए। कह लगे जी जी इस वास्ते करने आ। मैं क्या फिर सादा जिहा सवाल है आया कि इसाले सवाब का ये जड़ा तरीका जड़ा काम करते हो, कुरान हदीस अंदर तरीका मौजूद है? कह लगे जी मौजूद है। मैं किथे लिखे है? कह लगे वो हदीस नहीं, बुखारी मुस्लिम की केड़ी हदीस है? आपने फरमाया इब्ने आदम जदों फौत हो जाता है उहदे सारे अमाल कटे जाते हैं सिवाय 3 अमल। किन्ने अमल? 3 अमल। पहला अमल सदकातुन जारिया, सदका जारिया। कोई भी सदका जारिया नेकी दा काम जिंदगी अंदर कर गया वो जारी रहिंदा है, या उहदे अहलो अयाल वरसा उहदे वल्लों सदका खैरात करते रहिंदे ने, कोई नेकी दा काम करते ने तो उहदा उहनूं अजर मिलता है। और दूसरा काम नफ़ा बख्श इलम, कोई दीन दा इलम, या फिर ऐसा इलम कि एक बच्चा यतीम है, माड़ा है, कमज़ोर है, मेरे को एक कारागरी है, मैं मोटरसाइकिलों का मकैनिक हाँ, मैं दर्जी हाँ, यानी कोई भी फन है उन्होंने सिखा जाना, उस फन के अंदरों कमा कमा के अपने अहलो अयाल की रोज़ी रोटी हलाल रिज़क कमाना, यदा भी अजर कबर के अंदर बाद अंदर पहुँचता रहिंदा है। और दर्जीओ खुदा का वास्ता है 10-10 साल सिर्फ जड़ा ना बटना ते बच्चियां नूं ना रखिया करो। ਉਹ ਮਕੈਨਿਕੋ 10-10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਗਰ ਬਾਪ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਖੁਦਾਰਾ जल्दी इखलास के नाल इन्हां नूं जिहड़ा तुहाडे कोल हुनर है इन्हां दे हत्थां अंदर दे के साल डेढ़ दोवां दे अंदर फारग करके इन्हां नूं भी रोजी रोटी करने वाला बना दिया करो। इस तरह की खयानत ना करया करो मेरे प्यारे बुजुर्गो नौजवानों। अगर तुहाडे कोल कोई बच्चा प्यारा छड़ जाए, तुहाडे कोल इलम है, वो इलम दीन दा होए, वो इलम जिहड़ा है तजारत दा होए, उहनूं इलम दे नाल जिहड़ा इन्हां रोशन कर दिओ ताकि वह भी अपने कदमां ते खड़ा हो जाए। वो इलम दीन दा होए या वो इलम तजारत दा होए या दुनिया दा इलम होए। अच्छा तीसरा काम ये वे कि नेक औलाद जिहड़ी दुनिया ते बंदा छड़ जाए, वो जिहड़ा भी नेकी दा काम करोगी, नमाज पढ़ेगी, हज करेगी, रोज़ा रखेगी, कुर्बानी, ओदा अजर वालिदैन तक पहुँचता रहेगा। मैं क्या इन्हां तिन्नां दे अंदरों ए कुल साता चलीसवां जिहड़ा करदे हो तिन्हां अंदरों कित्थे लिखिया है? कहण लगे जिहड़ा सदका जारिया है ना ये अंदर लिखे है, इस तो मुराद कुल साता चलीसवां है। मैं क्या अगर सदका जारिया के अंदर कुल साता चलीसवां अगर दाखिल करेंगे ये तो किसी सहाबी का अमल पेश कर दे रौला मुक जाएगा। किसी सहाबी का अमल पेश कर दे। नबी पाक की जिंदगी अंदर सैयदा खदीजा वफात पाइया, आप दियाँ 3 बेटियां गईयां, नबी पाक के 2 या 3 बेटे दुनिया तो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे तीसरे चौथे 5वें 6वें दिन यह जड़ा सारा अंदाज बरादरी सद के कीता है। आया कि रसूल पाक तो साबत है असर कोई मौजूद है, कोई फेली कोली तकरीली रिवायत मौजूद है? कह लगा नहीं ये तो मुराद है ये वे, इस तो मुराद सदकातुन जारिया तो मुराद ये। मैं क्या हजरत अबू बकर दुनिया तो गए, आप दी लखते जिगर सैयदा आयशा सदीका दुनिया ते हयात सर, आप दी जिंदगी अंदर बाप चला गया है। इन्हां नूं भी ये साले सवाब दा तरीका आउंदा सी? कह लगा आउंदा सी। मैं क्या अगर आउंदा सीगा इन्हां ने अंदाज की इख्तियार कीता है? कह लगा असल दे अंदर गल ये वे कि इन्हां नूं जरूरत कोई नहीं, क्यों? वो बख्शे हुए ने। मैं क्या अच्छा अगर वो बख्शे हुए ने, वाकया तन बख्शे हुए, कोई शक नहीं, सहाबा सारे की ने मिल के बोलो जनती ने, बख्शे हुए ने, कोई शक नहीं। मैं आख्या अगर तेरा उसूल लै लईए फिर सहाबा इकराम नमाज़ां क्यों पढ़ते सन जो है ही बख्शे हुए सन? सहाबा इकराम हज उमरे क्यों करते सन जो है ही बख्शे हुए सन? क्यों करते सन? अल्लाह दे बंदो थोड़े जे होश ते नाखन लवो।
अगर रसूल पाक ने अमल दसिया हुंदा सहाबा ना करदे, मेरी ईमान, मेरी गैरत, मेरा मनज, मेरा जड़ा ना अकीदा तस्लीम नहीं करता। नबी पाक ने एक काम कीता होए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ए 3 तरीके दसे ने इसाले सवाब दे, ए जड़ा सारा कुछ करते हो क्या सहाबा इकराम ने कीता है? कहने लगा उन्हां नूं जरूरत कोई नहीं, मैं जरूरत नहीं सी ते बाकी अमाल क्यों करते सन? नाल अडोल जी होर कोई गल नहीं हुंदी। अच्छा गल तो ठीक है यार, असल के अंदर ना साडा दादा करदा आ, प्यो करदा आ, हुण बरादरी फसे पे हैं, सिंह फसे गए हैं, बस चुप कर जो, बरादरी बेस ते। मैं बरादरी बेस ते कर दिओ ना। कहने लगा जी मैं इसाले सवाब तो कोई नहीं ना, रसम ही है ना तुहाडा अंदाज। कहने लगा जी मैं कराओ, कोई इख्तलाफ नहीं सानू, जिंदियां दे कराओ मुर्दियां दे कराओ, सानू कोई इख्तलाफ नहीं। अल्लाह दी कसमें जदों कहोगे ना इसाले सवाब मैयत नूं अजर होएगा, असां तुहाडे कोलों दलील पुछांगे, तुहानूं दलील देनी पएगी, क्योंकि दीन तेरी बेबे दा नाम नहीं, दीन तेरे बाबे ते दादे ते परदादे दा नाम नहीं। ये दीन आसमान तो रब ने खालस नाजल पैगंबर दे सीने ते कीता है। रसूल पाक जो कुछ दस के गए ओ दीन है, तेरा बाबा दीन नहीं, तेरा दादा दीन नहीं, तेरा बुजुर्ग दीन नहीं। दीन ओ वे खालस जिहड़ा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खालस जुबान दे अंदरों निकले है। दीन दे अंदर ना मैं अपनी मर्जी कर सकदा, बोलो ना तुसां अपनी मर्जी कर सकदे, नहीं कर सकदे असां अपनी मर्जी। नबी पाक सल्लल्लाहु एक दफ़ा ना साडे अजीज़ दे अंदर एक फौतगी होई, गल बड़ी मज़े दी है, सुनिया जी। 2 पुत्तर सीगे ओहदे, वो फौत हो गया बाप जिहड़ा है। फौत होने तो बाद ना कोई 4 दिन गुजरे तो सानू खबर मिली है कि 2 भरा आपस लड़ पे ने। तो असीं गए तो जाके पूछा भी क्यों पे लड़ते हो तुसीं? कहंदा जी मैं अब्बे दे फौत होने ते कुल कराए ने ते कुल्लां ते 60-65 हज़ार रुपये, पुरानी गल है, 60-65 हज़ार खर्चा आ गया, ये विचों हिस्सा नहीं देंदा, ये विचों हिस्सा नहीं देंदा। मैं की जरूरत सी तुहानूं कुल कराउण दी, सादा कराउण दी, चलीसवा कराउण दी, ये सारा कुछ करन दी की जरूरत सीगी? इन्ना जो तंग हो के करस चुक के इन्ना तू काम कीता है ते हुण तुसां आपस दे अंदर लड़न दे हो, की जरूरत सी? कहने लगा जी सानू बरादरी जीन नहीं सी देंदी। वो कहंदे सी अब्बा मर गया है, 2 पुत्तर ने, अब्बे वास्ते सिर्फ 4-5 देगा नहीं ला सकते, सानू ए गल खा गई है, यानी ਇਹਦਾ प्यारा फौत हो गया, इन्ने जोगा नहीं देगा नहीं ला सकता। हजरात ए बरादरी दियां गल्लां ने तेनू मैनू मकरूज कर देना है, तेनू मैनू गुनाहगार कर देना है। ए लोगां दियां गल्लां मैं अगे भी अर्ज कीता है चंद एक जुम्मे खुतबाते जुमा दे अंदर कि अगर लोग क्या कहेंगे इन्हां गल्लां दे पीछे लग जाए इंसान जहन्नम दा बालन बन जाता है, सिर्फ इस गल की वजह दे नाल के लोकी की कहणगे ना बरादरियां पीछे लग के पैगंबर नाल बेवफाई कर, ना लोगों दी गल्लां पीछे लग के दीन दे अंदर कोई नवा काम इजाद कर। प्यारिओ ये बरादरियां ए जड़ियां दुनिया दे ऊपर रिश्ते नाते ये दुनिया ते रह जाने ने, कब्र अंदर तन तनहा जाना है। मेरे पैगंबर दी सुन्नत दे मुताबिक जेड़ा अमल होएगा, तरीका होएगा, वो काबिल कबूल है। उस तो अलावा जो कुछ किया जाएगा मैयत वास्ते या दीन दे अंदर जो कुछ किया जाएगा और रद्द कर दिता जाएगा, वो बर्बाद कर दिता जाएगा, रद्दी दी टोकरी अंदर सुट दिता जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 अमल इब्ने आदम दे जारी रहंदे ने, सदका जारिया। प्यारिओ जिंदगी अंदर सदका जारिया कर जाओ, मस्जिदां बना जाओ, सदका जारिया कर जाओ। किसी दी बेटी दा निकाह करवा दे, वो शादी करवा दो, सदका जारिया है। किसी जगह ते पानी दा इंतजाम कोई नहीं कर जाओ, सदका जारिया है। मसाजिद मदारस नूं खड़ा कर जाओ, सदका जारिया है। जिस तरह के मैं तुहाडे सामने खड़ा, मैं भी सदका जारिया। मुदरसियां अंदर पढ़े ज़कातां दा माल आया, सदकातो खैरात दा, वो एक एक दाना जड़ा साडे जिसम अंदर गया, साडे जिसम दी खुराक, खून दे कतरात, ए जिसम दे ऊपर गोश्त चढ़े है। अज मैं तुहाडे सामने सेहतमंद खड़ा होके तुहानूं दीन दस रहा वां। वो फौत होने वाले पता नहीं कौन होणगे, जिंदा होणगे, फौत हो गए, ਇਹਦਾ अजर उन्होंने भी मिल रहा है, ਇਹਦਾ अजर मेरे उस्तादां नूं मिल रहा है, ਇਹਦਾ अजर मेरे माँ बाप नूं दुनिया ते जान तो बाद भी मिलता रहेगा। हाँ, मैयत वास्ते अगर माँ फौत हो गई है, बाप फौत हो गया है, हज करो, हज करो, हजे बदल करना
नबी पाक सल्लम दी हदीस के अंदर मौजूद है कि अपने प्यारा जड़ा दुनिया तो चला जाए उहदे वास्ते हज्जे बदल करो, उहदी तरफों हज करो। बदनी इबादत असां उन्नी को करांगे जिन्नी कि साडे कोल दलील मौजूद है। बदनी इबादत मैयत वास्ते असां उन्नी करांगे जिहड़ी साडे कोल दलील मौजूद है। मैयत फौत हो गई है, सब तो पहले मैं नमाज़ पढ़ा अपने अब्बे वास्ते, उन्होंने बख्श छड्डां, फिर नमाज़ पढ़ा अपनी, ਇਹਦਾ सबूत नहीं। हज है ना, ये बदनी इबादत भी है, माली इबादत, यानी कि बदन भी लगता है और माल भी लगता है। ये ऐसा करना कहने करो, रसूल पाक दी सुन्नत है। क्यों? क्योंकि दलील मौजूद है। हाँ, अगर कोई बंदा कुर्बानी करना चाहे अपने वालिदैन दी तरफों, कुर्बानी भी कर सकता है मैयत की तरफ। अगरचे शदीद तरीन उलमाए कराम के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन दो रिवायत मजबूत तरीन रिवायत ने। रसूल पाक ने वो मेंढा मंगाया, ज़िबा कर दिता, दूसरा मंगाया, आपने फरमाया ये पहला फरमाया मेरी तरफों, मेरे अहले अयाल की तरफों, दूसरा मंगाया फरमाया कि अल्लाह कबूल कर लै मेरी उम्मत की तरफों। उम्मत के अंदर जोड़े जिंदा सी उन्होंने तरफों भी, जोड़े दुनिया तो टुर गए सी उन्होंने की तरफों भी। और हज़रत अली नूं रसूल पाक ने वसीयत फरमाई, मेरे जान तो बाद मेरे वल्लों ना, मेरे वल्लों मैं यानी कि दुनिया तो चला जावा ते कुर्बानी करता रही। हज़रत अली जब तक जिंदा रहे ने दो मेंढे करते रहे, एक अपने अहलो याल, एक रसूल पाक की तरफों। अगर इख्तलाफ तो बचना होए ना, तो जेड़ी नेक औलाद है ना, नेक औलाद घर का सरबराह है, वो एक जानवर कुर्बानी लिया के करेगा ना, उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं कहन दी माँ वल्लों है, कोई ज़रूरत नहीं भैन वल्लों है, बाप वल्लों है। वो जड़ा जानवर लिया के ज़िबा करेगी, जिन्ना अजर घर वालियां नूं उन्होंने मिलेगा, उन्ना अजर वाले दैन नूं भी पहुँच जाएगा। फिर की ज़रूरत है एक नवा जानवर? अगर इस्तिताअत है लै, हिम्मत है लै, अगर नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादातर अपने कंधियां ते बोझ पाने दी। ना इस्लाम ने तुहानूं मैनूं तंग किया है, ना मजबूर किया है। इस्लाम ने तो कहा है आसानियां ही पैदा कीतियां ने हर तरफ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऊपर नाज़िल होने वाला दीन, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाया करते सर कि जिन्ना घरां दे अंदर फौतगी हो जाती है, उन्हां घरां अंदर पकन वाला खाना है। असां इंज उस खाने नूं समझदे सां जिवें नोहा करना जायज़ नहीं, नोहा करना जायज़ नहीं। इसे तरह मैयत दे घर अंदर पकिया होया खाना खाना असां जायज़ नहीं सी समझदे। हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अली दे भाई सन, एक गज़वे अंदर मैदान अंदर शहीद हो गए। उन्हां दी शहादत की खबर आई, घर अंदर गम दा आलम सी। रसूल पाक ने फरमाया ए जाफर दे अहलो अयाल वास्ते ना, जेड़े घर अंदर गम अंदर ने, इन्हां वास्ते खाना तैयार करो। यानी कि जेड़े सहाबा इकराम कोल मौजूद सन, उन्होंने फरमाया खाना तैयार करो, उन्हां वास्ते खाना तैयार करो। क्यों? जाफर दे घर वाले इस वक्त गमज़दा ने, परेशानी अंदर है, परेशान लोगों वास्ते इस गम की हालत अंदर दाद रसी वास्ते उन्हां लई खाना तैयार करो। लेकिन साढ़े भला अंदाज की है, एक घर अंदर फौतगी हो गई है तो जड़ा रिश्तेदार है ना, हुण उहदे सिर च दर्द है। क्यों दर्द है? उन्होंने पता है इस घर च फौतगी हो गई है, खाना देना है 10-15 देगां तो घट नहीं। क्यों? जिन्नी बरादरी है सारी दी सारी उस घर अंदर आकर ढुक पैंदी है, सारी दी सारी बरादरी उस घर अंदर आ जाती है। सारे रिश्तेदार मेरे प्यारे भाईओ, ये खाना सिर्फ अहलो अयाल जड़े घर अंदर ने ना, उन्हां वास्ते वे। अगर इथों तक गल रहे तो फिर तो मसला ही कोई नहीं। जेड़ा करीबी है, हमसाया है, बाजार अंदर रहने वाला है, ओदा हक है कुछ पकाए, कोई नाश्ता कुछ खाना तैयार करे। लेकिन घर के जड़े अफराद 5, 7, 10 से उन्हां वास्ते, बाकी जड़े पिंड थां दे रहन वाले ने, बस्ती शहर दे अंदर मुहल्ले कलोनियां च रहन वाले, उन्होंने चाहिए अपने घर अंदर जाके खा लैन। ये नहीं कि 3-4 दिन जड़ा ना अपने घर नूं ताला लाया, घर अंदर अग नहीं बालनी, बस जड़ा फौत हो गया एक ते अगे मर गया, ते जड़े जींदे ने गमज़दा है असा उन्होंने कर्जे थले लिया डबो डबो के मारने। प्यारे हो, दीन नहीं, इस्लाम नहीं, शरीयत नहीं, वो बोझ ना बनो लोगों के ऊपर, आसानियां करने वाले बनो।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتا ہے گھر والیاں واسطے کھانا تیار کیتا جائے۔ حضرات ایصال ثواب واسطے اے تین طریقے نے، ایصال ثواب تین طریقیاں تو علاوہ کوئی ایصال ثواب دا طریقہ کوئی نہیں۔ اپنے والدین دی طرفوں صدقہ کردا رہے۔ اگر تو نمازاں پڑھنا ہے اللہ دی قسمیں تیرے باپ دی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اگر حج کر رہے ہیں تیرے ماں باپ دی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اگر اچھا بول پیا بولدا ہے تیرے والدین دیاں قبراں ٹھنڈیاں ہو رہیاں نے۔ اگر تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں تیرے ماں باپ دیاں قبراں ٹھنڈیاں ہو رہیاں نے۔ اگر دعاواں کر رہے ہیں دعاواں دا اثر تے دعاواں دا فائدہ تیرے والدین نو پہنچ رہا ہے۔ پیاریو آؤ آؤ دین دی طرف آؤ، آؤ اسلام دی طرف آؤ، آؤ خرافات دے کولو جان چڑھواؤ۔ اے خرافات تے رسومات دین دا حصہ نہیں، اسلام دا حصہ نہیں۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا دین تواڈے میرے کو لے کے آئے نے، اس دین دی طرف آئیے، اس اسلام دی طرف آئیے۔ اے کل کرنا ساتا کرنوا رج کے کر، بار بار کر، جوندیاں دے کر، مردیاں دے کر، منو تیرے نال کوئی جھگڑا نہیں، لیکن خدا دا واسطہ ہے ان معاملات دے اندر آ کے، ان برادریاں دیاں گلاں دے اندر آ کے، رسم و رواج دے اندر آ کے اپنا مال برباد نہ کر، اپنا مال ضائع نہ کر۔ اینا قوماں برادریاں نے تیرا ساتھ کوئی نہیں دینا۔ اگر کچھ کرنا چاہنا ہے خدا را اپنے والدین واسطے خاموشی دے نال صدقہ کر لے، کٹ کر کے برادری دا بوجھ اپنے تے بنا کے نہ اتنا خرچ کر، ایک دے اجر نہیں ملے گا، اور دوسرے نمبر تے کہ جڑی بدعت اللہ دی قسمیں بیتی بندے دا انجام کی ہوئے گا جڑا دین اندر نمے نمے کم کردا ہے۔ نبی پاک حوضے کوثر تے بیٹھے تشریف فرما ہون گے، ادھروں ایک لوگاں دا گروہ آئے گا، نبی پاک فرمان گے آم دیو، آسمان والا رب اینا دے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا، یعنی نبی پاک دے اس قوم تے لوگاں دے درمیان، اور آواز لگائی جائے گی سو کر سو کر سو کر سو کر ہٹ جاؤ نبی پاک دے حوضے کوثر تو، سو کر نہیں ملے گا حوضے کوثر دا جام۔ اے اللہ انہاں دا گناہ کیے، انہاں دا جرم کیے، انہاں دی گناہ تے غلطی خطا کیے، جدو انہاں کیا جائے گا انہاں دی غلطی تے خطا کیے، آسمان والا رب کہے گا اے سونیا محبوبہ تواڈے تو بعد انہاں نے دین اندر نویں نویں کم ایجاد کر رہے سر، جنہاں نے دین بنایا اپنی سوچ دے مطابق، اللہ پاک نے نبی پاک دے حوضے کوثر تو ہٹا چھڑے آئے۔ آؤ آ کے تزیت کرو، تزیت واسطے آ کے حوصلہ دے وہ انا للہ ما آخذ ولہ ما آتا اندہ کل شیء فلتصبر ولتحتسب، انہاں واسطے دعا کرو یا اللہ انہاں نو نعم البدل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، انہاں نو حوصلہ دے جا کے، اے نہیں ادھروں ماشاءاللہ ہوکے دی لڑی پائی منہ چ کڑ فاتحہ کہہ بھئی فاتحہ ہاتھ چک لینے، بو ہوندی لگوں بغیر وضو دے بیٹھا فاتحہ کہی جاندہ، جتھے فاتحہ کہنی سی جنازے اندر اوتھے پڑھی کوئی نہیں، ایتھے آ کے فاتحہ کہہ آ کے۔ میرے پیارے بھائی نہیں، اگر تینوں ایڈا احساس ہے جا اٹھ کے میت جڑا فوت ہونے والا دی قبر تے جا کے کلا جا کے کہہ ہاں فاتحہ، اوتھے جا کے رج کے پڑھا، اوتھے دعا کر، اوتھے نہیں کرنی، ایتھے آ کے سارے بغیر وضو چگلیاں ہو رہی ہیں، پھوڑیاں دے اوتے بیٹھے ہیں، کی ہو رہے ہیں؟ لوگاں دیاں عزتاں تے حملہ ہو رہا ہے، جو پنڈ تھان دیاں گلاں نے، جو کوئی ایسا معاملہ پیش آیا انہوں ڈسکس کیتا جا رہا ہے، کوئی عبرت حاصل نہیں کیتی جا رہی۔ حوصلہ دیو، صبر دیو آگے، لیکن اے انداز جڑا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا انداز نہیں۔ اللہ پاک تانوں تے مینوں دین اسلام سنت دے مطابق تمام تر میت دے احکام و مسائل اللہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔